سب پہ نظر اندر کی خبر۔ السلام علیکم۔ پروگرام ایک لمحہ ایون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں زوبیہ خورشید۔ موجودہ سیاسی صورتحال، بلاول بھٹو زرداری کا بیان اور نون لیگ کا بیانیہ، یہ ساری صورتحال، یہ کہانی کس طرف جا رہی ہے، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار افتخار احمد صاحب موجود ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے۔ افتخار صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ فوجی قیادت کے حوالے سے جو بیان آج بلاول بھٹو زرداری نے دیا، اور کیا اس کو لے کے پی ڈی ایم پہ کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں، ہر چیز کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے، بہتر سر، دیکھے بغیر تو بات نہیں کی جا سکتی نا۔ اور جہاں تک بات رہی افواج پاکستان کے بارے میں، تو سب سے پہلے جو پارٹی جس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ لوٹ لیا گیا الیکشنز اور مداخلت کی گئی الیکشن میں، پیپلز پارٹی ہی تھی، نون لیگ کے بعد میں اس میں شامل ہوئی۔ ایک دوسری بات ہے کہ جو بیانات ہیں ہر پارٹی نے اپنے موقف کے بارے میں لینے ہیں۔ جی سر، پیپلز پارٹی کا موقف اپنا ہے۔ پیپلز پارٹی نے ایک زمانے میں کھل کے کہا تھا فوج کے ساتھ، جب آصف علی زرداری نے تقریر کی تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آصف علی زرداری سے دبئی چلے گئے۔ جی سر، نواز شریف کے جو موقف ہے وہ بڑا واضح ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں مداخلت کی گئی، اور وہ 3 نام بھی لیتے ہیں مداخلت کے لیے، انہوں نے یہ چھپایا بھی نہیں۔ جی سر، ٹھیک ہے، اب آنے والی کل میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ کھچاؤ چلے گا۔ اس کھچاؤ میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی اور خود پاکستان ملوث ہیں۔ جی سر، اتنا لمبا کھچاؤ چل نہیں سکتا، اور نہ ہی فوج کے خلاف کوئی ایسی تحریک اٹھ سکتی ہے اور نہ ہی اٹھنی چاہیے۔ سو فوج کو اس حد تک تو لوگوں کا اعتراض ہے جس حد تک آپ سنتے ہیں کہ جی ہمارا الیکشن لوٹ لیا گیا، انہوں نے مداخلت کی، اس سے بات آگے نہیں بڑھے۔ جی سر، اب فیوچر میں یہ جو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک رول ڈیفرنٹ ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے انتخابات کے بعد شاید ان سے معاملات جو ہیں حتمی شکل اختیار کر جائیں، اور ایک ایسا راستہ ڈھونڈا جائے جس میں عمران خان صاحب کو بھی موقع مل جائے کہ وہ بھی باعزت طور پہ اس راستے سے نکل جائیں، چلے جائیں، ہٹ جائیں، فیصلہ کرنے کیسے جانا ہے۔ 2 سال کا مارجن پیریڈ بیچ میں ہوگا، اور جب پیپلز پارٹی کے ساتھ بات طے ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ بات پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے بھی قابل قبول ہوگی، کیونکہ کھچاؤ جتنا کم ہوگا اور تناؤ جتنا کم ہوگا، دھمکیاں جتنی کم ہوں گی، اتنا ہی معاملہ یہ ٹھیک ہوگا۔ اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، کوئی بھی بیان دے دے، کوئی کہے کہ مجھے میاں صاحب کے بیان سے اختلاف ہے تو پی ڈی ایم چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے پی ڈی ایم چھوڑنے کا تو نہیں کہا۔ جی، پی ڈی ایم ایسے ہی رہے گی جیسے ہے۔ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی چل رہی ہیں جس کو انڈر گراؤنڈ کہہ سکتے ہیں آپ، جو ہمیں نظر تو نہیں آ رہی لیکن ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ مثلاً یہ کہنا کہ بغیر نام لیے ان کا یہ کیا نام ہے، مریم کا، گلگت بلتستان میں بغیر نام لیے یہ کہنا کہ ہم الیکشن کو چوری نہیں کرنے دیں گے، کسی کا نام نہیں لیا، کسی ادارے کا بھی نام نہیں لیا۔ یہ ایک تبدیلی ہے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تبدیلی کے پیچھے کیا ہے، کیونکہ بغیر کسی وجہ کے تو میں ایسا باہر نہیں گئے، ایسے تو نہیں چلے گئے کہ ان کو کسی نے کہا ہو کہ چلے جائیں، ان کو تمام سہولتیں دے دی گئی۔ تو جو کچھ بھی کیا گیا اور ریاست کی سطح پہ کیا گیا ہوگا نا، جس پہ عمران خان کچھ ناراض بھی تھے اور غالباً 2 دن تک وہ ان کا موڈ بھی آف رہا۔ تو یہ ساری چیزیں ایسے دیکھیں نا آپ، میں ایک آدھے بیان سے ہم اس چیزوں کو نریٹ کریں۔ جی سر، ایک عام آدمی، عام انسان تو یہی سمجھے گا کہ پی ڈی ایم کے اتحاد کو خطرہ ہے، تو شاید چہ مغیاں ہوئیں گی اس طرح کے بیانات کے اوپر۔ میں سمجھتا ہوں کہ چہ مغیاں آپ کی اور میری وجہ سے ہوتی ہیں، ہمیں کوئی کام نہیں ہے۔ نہ ہم گندم کی بات کرتے ہیں، نہ چاول کی بات کرتے ہیں، نہ ہم بے روزگاری کی بات کرتے ہیں، نہ ہم ظلم کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم کسان آئے، مظاہرہ ہم کر رہے تھے کہ جی ہماری جو قیمتیں خرید بڑھائیں،
बिल्कुल लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस हुई। सर मैं उस तरफ भी आना चाहती हूँ, मैं उस तरफ मैं आपसे ये किसान के हवाले से भी बात करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये सवाल आपसे करना चाहूँगी कि एहतसाब के दावे बहुत किए गए और ये हुकूमत जो है एहतसाब का नाम लेके ही आई है। तो रिसेंटली जहांगीर तरीन साहब अपने बेटे के हमरा पहुँचे पाकिस्तान और हमारी मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जो कि हुकूमत में हैं, उन्होंने वाहलाना इस्तकबाल किया एयरपोर्ट में जाके। इस हवाले से क्या कहेंगे आप, कैसे क्या देखते हैं आप? तो आप इससे नजर लगा लेना, जो बात मैंने आपसे कही है उस बात को जरा इससे मिला के देखना थोड़ा सा। मैंने ये कहा कि मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ डायलॉग पहले हो जाए जी, और वो डायलॉग क्या होगा, वो ये होगा ना मुकदमात के हवाले से होगा जी, और चूंकि बराह इमरान नहीं चाहेगा कि कोई ऐसा डायलॉग जो नवाज शरीफ के साथ हो, क्योंकि वो नहीं चाहता जी। सर इमरान भी तो एक मफलीक बन गया ना इस सारे खेल के अंदर। जी बिल्कुल, इमरान को भी तो वो रास्ता देना है ही नहीं देना किसी वक्त, साल बाद 2 साल बाद, या उसके साथ भी कोई बहुत ये करना जो ये दूसरों के साथ करते रहे। जहांगीर तरीन का वापस आने का मतलब ये है कि कुछ चीजें ऐसी तय हो रही हैं कि ये जो करप्शन के बुनियाद पे मुकदमे हैं, या जो नैब का जो रोल है, या ये 120 अदालतों की बात की जा रही थी, शायद इसमें कोई तब्दीली आए, क्योंकि देखिए मुकदमात से अभी तक कुछ नहीं मिला। 3 साल हो गए मुकदमात से कुछ नहीं मिला, और असफजारी वगैरह के तो खिलाफ मुकदमात 3 साल क्या कई सालों से चल रहे हैं। बल्कि अब तो एक साबिक फौजी ये कह रहे थे आज एक प्रोग्राम में कि असफजारी के मुकदमात के कागज ही सारे बदल दिए गए हैं जी। तो इस इतने लंबे अरसे के लिए तो नहीं रखा जा सकता। और आपको ये कहना है कि अवाम समझेंगे पीडीएम टूट गई, अवाम को पीडीएम से मोहब्बत तब पैदा हुई जब महंगाई बढ़ी। बिल्कुल ऐसा ही है। इससे पहले अवाम को पीडीएम से कोई मोहब्बत नहीं थी जी। उस वक्त मोहब्बत बढ़ी जब उन्होंने देखा कि गवर्नेंस नहीं हो रही है, तब बढ़ी। मुझे जब तकलीफ होती है ना, जब मैं कह रहा था कि मेरा एक दोस्त मारा गया बेचारा, बुरे वाला से आया, प्रोटेस्ट कर रहा था, वो अपनी चीजों की कीमत कहता था मुझे ज्यादा दो, वो हमने उसकी डेड बॉडी उसके घर भेज दी। ये गलत है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखना, यानी जो बड़ा कारखानदार है वो तो अपनी मर्जी से अपनी चीजों की कीमत तय कर लेता है। बिल्कुल। वो जो जिस चीज वो अपनी दवाइयों की बदतरीन महंगी तरीन कीमत कर लेता है, ठीक है। लेकिन जब एक किसान गंदम पैदा करता है, वो कहता है इस गंदम की कीमत खरीद बढ़ाओ क्योंकि मैं इसको पैदा नहीं कर सकता। और याद रखना, अगर गंदम कम पैदा होती है तो उसका नुकसान हमारे मुल्क के ज़र मुबादला को होता है। हमें गंदम बाहर से खरीदनी पड़ती है और वो महंगी है, और उसके लिए हमें पैसे जो है ज़र मुबादला से जो हमने इकट्ठे किए होते हैं वो खर्चने पड़ते हैं। अभी बातें हम कैसे समझाएं और किन प्रोग्रामों में समझाएं, क्योंकि प्रोग्राम तो होते नहीं इन पे। प्रोग्राम तो ये होते हैं कि आज उसने बीबीसी को इंटरव्यू दिया, इस इंटरव्यू से कुछ लोगों ने समझा कि अब नवाज शरीफ और बिलावल के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं। अब उनके खिलाफ इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं तो पीडीएम टूटने वाली है। अब बस पीडीएम टूट गई तो मसला खत्म हो जाएगा। सर मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे, मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी कि सपोज करते हैं पीपल्स पार्टी की पहले बातचीत हो जाती है अंदरूनी सतह पे, तो आप क्या देखते हैं इसमें आवाम का क्या फायदा है? इसका मतलब है वो अपने फायदे के लिए बात कर रहे हैं कि वहाँ पे। देखो याद रखना, जमहूरियत जो है, जमहूरी अमल जो है ना जी, मैं खुद कहता हूँ अकाउंटेबिलिटी करो। इससे जमहूरी अमल तो मुतासिर होगा करने का, वो आपकी भी होनी चाहिए, मेरी भी होनी चाहिए जी। अगर मैं और आप अपनी आमदन से ज्यादा चीजें रखते हैं, याशियां करते हैं, तो होना चाहिए ना जी। ये जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज बनती हैं, ये जो इतने बड़े बंगले महल बनते हैं जी, तो इनसे भी तो पूछना चाहिए पैसा कहाँ से, ये पैसा आपको मेरा होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग जमहूरियत हो जो जिसमें करप्शन ना हो, वो भी पूछ सकती है। अब चूंकि हमारी जमहूरियत में करप्शन बहुत आ गई है, बदनवानी की बहुत बात की गई है और बदनवानी साबित नहीं की गई है, और एक बड़ी बदकिस्मती है कि साबित हो जाती तो बहुत अच्छा था, वो साबित भी नहीं हुई। तो क्या हम इस मामले को उलझाए रखें? नतीजा क्या हुआ जी? एक ऐसा आदमी लाया गया जिसके बारे में ये ख्याल था कि वो तब्दीली लाएगा, ठीक, वो 2.25 साल हो गए हैं जी, किसी किस्म की कोई तब्दीली किसी सतह पर भी नजर नहीं आ रही। तो क्या अगले 2 साल में भी इसी कंफ्यूजन की वजह से आगे बातें चलने में जो तमाम इदारे हैं वो महसूस कर रहे हैं जी, उसमें अवाम भी हैं, दूसरे अदारे भी हैं, ये अगर कोई बेहतरी की तरफ जाते और ये रिफॉर्म्स करते चीजों को,
तो बिल्कुल अच्छा था और बहुत अच्छा था। ये जो कहा जाता है ना मुक मुका की सियासत, जी, तो मुक मुका की सियासत तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी है। वहां पर भी एक सदी से ज्यादा अरसे में दो ही सियासी पार्टियां आपस में लड़ती आती हैं। जी, ये मुक मुका की सियासत अगर आप गौर से देखें तो बरतानिया में भी है। तो ये मुक मुका की सियासत का ताना तो अच्छा था और इसमें शायद वजन भी था, लेकिन उसको खत्म करने के लिए तीसरी पार्टी को ये गंदम की कीमत को काबू में रखना था। चीनी की, अब बताएं, खुद कह रहे हैं कि वो तरीन साहब तशरीफ ले आए। जी, बिल्कुल। तरीन साहब पर ये इल्जाम लगाया गया कि उनकी वजह से चीनी की कीमत बढ़ी। बिल्कुल। एक को वो कमीशन बना, कमीशन की रिपोर्ट आई, बड़े बल्ले बल्ले वाह वाह हुई, कुछ भी नहीं हुआ और तरीन साहब भी वापस आ गए। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। अब सबके लिए यही असूल बना पड़ेगा, या तो सबको सजा मिलनी चाहिए या किसी को नहीं मिलेगी। मेरा ये ख्याल है कि कुछ ताकतें इस नतीजे में पहुंची हैं कि अब मामला को ऐसा अगले 2 साल के अंदर इस रुख में ले जाया जाए कि जो ये खिंचाव है ये खत्म हो और चीजें बेहतर हो, ताकि अवाम को फायदा हो। अवाम को फायदा तब होगा जब गवर्नेंस होगी। जब गवर्नेंस सिर्फ ये होगी कि उसने मुझे सजा देनी और आपको सजा देनी है, तो फिर मामला मेरे और आपके लिए नहीं है। मसला फर्ज करेंगे, कहते हैं हम घर बना रहे हैं गरीबों के लिए, एक छोटे से छोटे घर की कीमत है 35 लाख रुपया। मुझे बताओ कि कोई गरीब आदमी 35 लाख रुपए का घर दे सकता है? बिल्कुल नहीं। नहीं, आप पूछिए अपने घर वालों से, अपनी फैमिली से। बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं होता। से ले सकता है सर, ऑब्वियसली अफोर्डेबल नहीं होता। ठीक है ना। तो ऐसी बातें करके हमें ना उलझाया जाए। हमें जो हमारी बुनियादी चीजें ना, हमारी बुनियादी चीजें अच्छी दवाई, अच्छा हॉस्पिटल, गन्नम, चावल, चीनी, जी, सब्जियां, ये सब्जियों का रेट तो जाके देखोगे सर। जैसे कि हम महंगाई की ही बात कर रहे हैं। मैं किसान हूँ, मैं पैदा करता हूँ जी। मैंने अभी शलजम फरोख्त किए हैं मार्केट, उसमें जाके मंडी में 16 रुपए किलो जी। बाजार में सर मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे कि महंगाई की भी बात कर रहे हैं। रिसेंटली ये जो किसान वाला वाकया हुआ, वो अपने हक के लिए आया और हमने उसकी लाश उसके घर में भिजवा दी। पूछना मैं ये चाह रही थी कि आप क्या समझते हैं, इसका कौन है जिम्मेदार? या हुकूमती पॉलिसीज हैं, या फिर करप्शन है, या फिर अपोजिशन के धरने? क्योंकि गरीब किसान है बेचारा, दूध से आया है जी, हमारा उसको। और किसान ने ये फैसला कर लिया कि उसने तमाम अपनी सड़कें बंद कर दी हैं, ट्रालियां लाके खड़ी कर देनी है और टायरों की हवा निकाल के घर चला जाना, तो फिर पता लग जाएगा कि किसान कितना ताकतवर है। बिल्कुल ऐसा ही है। भले अगर किसी दूसरी जो है तंजीमें इनकी ताजियों की, ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये बड़े स्ट्रॉन्ग है, ये अपनी मर्जी की पॉलिसियां बनवाते हैं। किसान ही बेचारा जो है जो वो अपनी मर्जी की पॉलिसी नहीं बनवा सकता। मैं समझता हूँ इस मुल्क के अंदर आपका सवाल जो था, उस सवाल से मैं बैठ गया हूँ। मेरी आदत बुरी है कि मैं सवाल कुछ होता तो मैं चला कहीं और जाता हूँ। आपका सवाल था कि आज बिलावल ने ये कहा है कि जो कुछ नवाज शरीफ ने कहा वो बिलावल के इल्म में सर नहीं, मैंने आप सर मेरा जो आप रिसेंटली सवाल था वो यही था कि महंगाई बढ़ रही है, कौन है इसका जिम्मेदार? हुकूमत की पॉलिसीज हैं या हुकूमत? जी जी, बेहतर सर। एक मार्केट कमेटियां किधर गई, वो इतनी मार्केट कमेटियां किधर गई? डिप्टी कमिश्नर क्या कर रहे हैं, कमिश्नर क्या कर रहे हैं? इतनी वो टाइगर फोर्स बनाई थी, वो टाइगर फोर्स क्या कर रही है? बिल्कुल। तो सर मैं अभी आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि रिसेंटली अमेरिका में इंतखाबात हुए, आप क्या समझते हैं नए आने वाले सदर के पाकिस्तान को लेके पॉलिसीज़ में कोई नरमी या फिर कोई ताल्लुकात में बेहतरी आने की कोई गुंजाइश है? मेरा ख्याल पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात में कोई तब्दीली आई, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। उनका जो मकसद था पाकिस्तान के हवाले से, वो शुरू में था सीटो सेंटर के हवाले से कि हम रूसी ब्लॉक में न चले जाएं और सोशलिस्ट ब्लॉक में न चले जाएं, उसे रोकने के लिए किया गया था। फिर उन्होंने हमें अपना रूस को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया, वो उनका मकसद था, उसमें हम इस्तेमाल हो गए उनके हाथों। फिर उसके इस्तेमाल होने के बाद हम तबाह बर्बाद हो गए। सर ये सब इस्लामोफोबिया की वजह से ही हो रहा है। अब चूंकि इस खिते के अंदर फिर दोबारा चाइना का एक इन्फ्लुएंस है, उस चाइना के इन्फ्लुएंस को चेक करने के लिए मुमकिन है हमारे साथ दोस्ती को बेहतर शक्ल दें, वरना और इंटरेस्ट उनका कोई नहीं हमारे साथ। जी सर, ओके सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ देने के लिए। शुक्रिया, आपने अपने राय से हमें आगाह किया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर तजज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इस बयान से पीडीएम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ दिए गए बयानात पर पीपल्स पार्टी साथ खड़ी नहीं होती। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर रहनुमा
मुस्लिम लीग नून गौहर अली साहब, उनसे हम पूछते हैं कि वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मौजूदा बयान पे क्या कहते हैं। सर, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बयान आया कि हम नवाज शरीफ के बयानी के साथ खड़े नहीं, जो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, तो आप क्या समझते हैं, क्या उनको एतमाद में नहीं लिया गया था इस मामले पे? नहीं, देखिए, गुजारिश ये है कि जो दोनों सियासी पार्टीज हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये दोनों सियासी तौर पर एक दूसरे की हरीफ सियासी जमातें हैं जी, और दोनों का अपने मैनिफेस्टोज पर इन्होंने इलेक्शंस में हिस्सा लिया है। और आपको पता है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के मुकाबले में उम्मीदवार खड़ी करती है जी। हर पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो है, अपना एक नजरिया है। जो वोट को इज्जत दो का नारा है, जो पाकिस्तान की सियासत को स्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत से शफाफ करने का और साफ करने का बयानिया है, वो हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया है। लेकिन पूरी ऑपोजिशन एक एजेंडे पर मुत्तहद है, मुख्तलिफ मकातबे फिक्र के लोग, कि ये हुकूमत धांधली की पैदावार है और इसको जाना चाहिए। इस बात पर जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं जो कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हैं, उनका तमाम पार्टीज का इस बात पर इत्तफाक है कि इस हुकूमत को जल्द अज जल्द जाना चाहिए और वो अवाम की ताकत से और अपने मुश्तरका लाया अमल के साथ इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इस हुकूमत को फारिग करेंगे। जी सर, बात अगर एहतसाब की जाए तो ये जो हुकूमत आई है वो एहतसाब का नाम लेके ही आई है। जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान में आ चुके हैं और हुकूमती रुकन ने उनका इस्तकबाल भी किया, वालिहाना इस्तकबाल हुआ, इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आई, प्लीज क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जरा प्लीज। सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो हुकूमत जिस नाम पे आई वो नाम एहतसाब नाम था, और अभी रिसेंटली जहांगीर तरीन साहब का जो केसेस थे शुगर मिल का, आपको भी बाखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा है, उनका हुकूमती रुकन ने ही एयरपोर्ट पे इस्तकबाल किया, उनको रिसीव करने गई फिरदौस आशिक अवान साहिबा। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, बात सुने कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, जो इनकी असल पार्टनरशिप है वो नैब के साथ है। ये धांधली की पैदावार है, ये वोट चुरा कर हुकूमत जो है ये कायम हुई है, ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, ये अवाम का मैंडेट हासिल करके नहीं आई। लिहाजा ये इत्तेसाद के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं। आप ये देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त जो अफसोसनाक सूरत-ए-हाल है कि जितनी हुकूमत में बैठे हुए लोग इमरान खान न्याजी की जेरे सरपरस्ती दोनों हाथों के साथ पाकिस्तानी खजानों को लूट रहे हैं, जिसमें आप देख लें कि चीनी का कितना बड़ा स्कैंडल आया, आटा और गंदम का कितना बड़ा स्कैंडल सामने आया, बीआरटी पेशावर का आप देख लें, और वो जो अद्वियात के रेट आसमान की तरफ चले गए जिसमें आमिर कियानी साहब इन्वॉल्व थे। फिर उसके बाद इसकी इमरान खान की हमशीरा का नाम आता है कि जो वो देखें कि उसको एनआरओ दे दिया गया। फिर इनके वो जो मतलब है कि मिनिस्टर है सरवर खान साहब, जब उनके पास वो पेट्रोलियम का चार्ज था तो उस वक्त उनके फजिंग के स्कैंडल, नदीम बाबर, हत्ता के एक बहुत तवील लिस्ट है अगर मैं नाम गिनवाने लगूं कि उसमें पंजाब की करप्शन इसके अलावा है जो बुजदार साहब और उसके साथी कर रहे हैं। केपीके में वो आतिफ खान और उनके चर्चे अलग हैं। लेकिन आप बताएं कि किसी एक केस के ऊपर कभी आपने देखा कि इन बंदों को जो कि मेगा किस्म के करप्शन स्कैंडल्स में इन्वॉल्व है, कभी आपने देखा कि किसी बंदे को नैब ने पकड़ा हो, उसको नोटिस लिया हो? और अफसोसनाक सूरत-ए-हाल ये है कि वो अरबों रुपए खाए जा रहे हैं, जी बनाए जा रहे हैं, लेकिन कोई नैब का इदारा जो है ना उनका दरवाजा खटखटाता है, ना उनके रिमांड लेता है, ना किसी की गिरफ्तारी करता है, ना किसी के अकाउंट्स मुंजमद करता है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन और बिलखसूस मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस वक्त अवाम के बयानिए पर खड़ी है
اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مطلب ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ وہی جو میاں صاحب کا نعرہ ہے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ، اور وہ اس بات پر ہم احتجاج کرتے ہیں کہ یہ جو ووٹ چرانے والے ان کی حکومت کیوں بنائی گئی ہے، تو اس وجہ سے تمام انتقامی کارروائیاں صرف اور صرف مسلم لیگ نون کے خلاف اس وقت ہو رہی ہیں۔ سر میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار افتخار احمد صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ڈیل وغیرہ ہو جائے پہلے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہے، اور افتخار صاحب کی بات وہ صافی ہیں، انہوں نے اپنا تجزیہ کیا ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب اور آصف علی زرداری صاحب نیک نیتی کے ساتھ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ کریں۔ جی سر، اگر شوگر سکینڈل کی بات کی جائے تو شوگر جو آپ کی مل ہے رمضان شوگر مل، اس کا بھی تو نام آیا تھا کمیشن میں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں، اگر عوام کو شوگر مل کا نام آیا ہے تو وہ تو جھوٹے نام دیتے ہیں نا انتقامی کارروائیوں کے لیے۔ اگر رمضان شوگر مل نے کوئی بینیفٹ لیا تو وہ سامنے کیوں نہیں لاتے؟ وہ اس کو بتاتے نہیں۔ یہ تو اربوں روپے کی جو ہڑپ کی ہے، جو پنجاب گورنمنٹ، جو کہ پنجاب گورنمنٹ سبسڈی دے ہی نہیں سکتی تھی، وہ سبسڈی وفاق نے دینی ہے، وہ اس کی پہلے نیازی صاحب نے اپروول دی، پھر وزیر اعلیٰ سے دلوائے گی۔ براہ راست اس کرپشن میں عمران خان خود ملوث ہے، اس نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے مل کے یہ کرپشن کی ہے، اور یہ اربوں روپے کا پاکستانی عوام کو چونا جو ہے یہ نیازی صاحب اینڈ کمپنی نے لگایا ہے۔ صحیح چونا کیسے لگا؟ یہ چونا بالکل اسی طرح سے لگا نا کہ اس کی اپروول آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب نے ایز اے پرائم منسٹر خود اس میٹنگ میں موجود تھے، اس کی انہوں نے اپروول دی۔ جہانگیر ترین صاحب والے تھے، وہ ان کے دستے راست ہیں، خود ہی پھر ان کو بھگا کے باہر بھی بھیج دیا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ان تمام لوگوں کو اربوں روپے ہڑپ کرنے کے بعد خسرو بختیار ان کے منسٹر نہیں ہیں، ان کو بھی مطلب ہے کہ اہم وزارت سونپ دی گئی ہے مزید۔ تو آپ یہ دیکھیں یہ تو مطلب ہے، اور باقی جو ان کے وزراء اور مشیران ہیں اکثر تو نان الیکٹڈ لوگ ہیں جن کے گھروں کے ایڈریس پاکستان کے ہیں بھی نہیں، وہ آؤٹ آف کنٹری رہنے والے لوگ ہیں۔ جس دن اس حکومت کا خاتمہ ہونا ہے انہوں نے دوسری فلائٹ پہ باہر چلے جانا۔ جی سر، بظاہر تو ہر حکومت اور ہر پارٹی یہی عوام کا نام استعمال کر کے آگے آ رہی ہوتی ہے۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ لاہور میں کسان جو مظاہرہ کر رہے تھے ان میں سے ایک کسان کی جان چلی گئی، وہ اپنے حق کے لیے آیا تھا اور وہ اپنی جان دے کے چلا گیا۔ اس حوالے سے کیا موقف رہا، مطلب آپ کا، اور آپ نے کسی سے کوئی ڈیمانڈ کی کہ کسانوں کا جو یہ جس حقوق کے لیے اور ریٹس کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کے لیے کچھ کیا جائے، ان کے لیے کوئی بات کی جائے کسی بھی پلیٹ فارم پہ؟ دیکھیں اپنا ابھی مریم صاحبہ نے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ان کا اسکردو اور گلگت بلتستان کے وہ دورہ پر گئی، 11 تاریخ کو انہوں نے واپس آنا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے فوراً جب انہوں نے کل ظلم کے پہاڑ ان کسانوں کے اوپر توڑ دیے۔ آپ دیکھیں کہ پورا پاکستان جو اناج کھاتا ہے، جو سبزیاں کھاتا ہے، جو دالیں کھاتا ہے، جو اجناس مارکیٹ میں آتی ہیں، وہ ہمارے کسانوں کے خون پسینے کی کمائی سے آتی ہیں۔ جنہوں آج مہنگائی اور ان کی نالائکی اور ان کی کرپشن اور ان کی نااہلی کی وجہ سے پورا پاکستان پریشان ہے، اسی طرح سے کسان اور ذمہ دار لوگ بھی پریشان ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان سے جو ان کی اجناس ہیں یہ سستے داموں ان سے خریدنے پر مجبور کرتی ہے، لیکن جو اس میں اس کی انپٹس ہیں، جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ان کی قیمتیں آسمان تک پہنچ چکی ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ کھادوں کی قیمتیں جو پی ایم ایل این کی حکومت جب میاں نواز شریف صاحب کی تھی اس سے اب ڈبل ہو چکی ہیں، بجلی کے ریٹ ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں، باقی پیسٹیسائڈ ہیں تو وہ۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس مہنگائی کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا حکومت کی پالیسیز ہیں، دھرنے ہیں، یا پھر اس کا کیا کہتے ہیں آپ؟ کیوں ہے یہ اتنی مہنگائی، کیوں بڑھتی جا رہی ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے؟ اصل وجہ جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ایک غیر نمائندہ حکومت ہونا ہے جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ نالائق لوگوں کا ٹولہ ہے، اور یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہ ان چند مٹھی بھر لوگوں کو پورے پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے۔ جب تک ان سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوتا، دوبارہ شفاف الیکشن نہیں ہوتے، پاکستان کے حالات معاشی طور پر اور سیاسی طور پر درست سمت جاتے نظر نہیں آتے۔ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیا تھا، اب 95% لوگ، آپ خود میڈیا کے سارے لوگ جانتے ہیں، صبح شام
टीवी पर और आपको पता है सोशल मीडिया पर सर्वे आ रहे होते हैं, जी। तो 95% लोग तो वो जिन्होंने इनको चंद वोट दिए भी थे वो भी अब इनके खिलाफ है। उसकी सिर्फ वजह यही है कि ये ना इनका लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर सके, मुआशी तौर पर इन्होंने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। डॉलर की आप देख ले प्राइस, गंदम की आप प्राइस देख ले, आप चीनी के रेट देख ले, सब्जियों के रेट देख ले, अद्वियात के रेट देख ले। और बदकिस्मती ये है कि जब वो उसकी मेन वजह ये है कि चूंकि गैर नुमाइंदा हुकूमत है और करप्शन में इन्वॉल्व है और नैब की छतरी के नीचे बैठकर ये करप्शन कर रही है, तो इसी वजह से फिर जब हुकूमत करप्शन में मुलव्वस हो जाए तो फिर आवाम के दिन कैसे बेहतर हो सकते हैं? सही है, नैब का एहतसाब कैसे मुमकिन है? बेहतर होते हैं जब हमदर्दी रखने वाली, जिस तरह जब मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने 5 साल दौर में दिन रात मेहनत करके, आपको पता है कि 24 घंटे में से 22 घंटे लोड शेडिंग होती थी, हजारों किलोमीटर के मोटरवेज बनाए, और आपको पता है कि उसके अलावा गुर्बत की जो शरह थी उस वक्त 4% तक ले आए थे, आज आपको पता है 12% तक गुर्बत की शरह। और आप ये देख लें कि जो इस वक्त ये अपने रेवेन्यू टारगेट्स तक भी पूरे नहीं कर सके, तो इनसे आप क्या तवक्को करते हैं? ये तो मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान के ऊपर अंधों, गूंगों और बहरों की भी हुकूमत बना दी जाती तो वो भी इनसे बेहतर होती, जिस तरह से ये न्याजी साहब मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं। सर, मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि अगर नैब जानबदार है और वो एक ही पार्टी को, हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है, तो आप क्या समझते हैं नैब का एहतसाब कैसे होगा? कौन करेगा इसका एहतसाब? देखें, ये इसमें बहुत बड़े लेवल पर रिफॉर्म्स की जरूरत है। ये नैब तो आपको पता है कि वो काला कानून है जो मतलब है कि एक डिक्टेटर ने बनाया और उसने सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए और अपने 9 साल पूरे करने के लिए ये बनाया गया। उस वक्त भी उसने लोगों को जेलों में डाला और जो उसके साथ मिल जाते थे उनको निकाल देते थे। लेकिन यही तो बयानियां लेकर मियां नवाज शरीफ साहब निकले हैं कि वोट को इज्जत दो, ताकि अवाम के वोट, अगर आप वोट डाल रहे हैं शेर के निशान पे मियां नवाज शरीफ साहब को, ये डिब्बे चोरी करके बल्ले के निशान के वाले वोट निकाल रहे हैं, तो ये निजाम तो फिर कामयाबी के साथ नहीं चल सकता। इस तरह तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह ताला एक न एक दिन वो दिन बहुत जल्द आएगा जब पाकिस्तान जो है वो कामयाबी की तरफ गामजन होगा, मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया कामयाब होगा, पाकिस्तान की करोड़ों अवाम मियां नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े। सर, उम्मीद तो ये की जा सकती है, लेकिन ये बताएं, अगर मुस्तकबिल में आपकी हुकूमत आ जाती है तो क्या आप महंगाई को कंट्रोल कर पाएंगे? डेफिनेटली। मैंने आपको पहले जिक्र नहीं किया, आप मुस्तकबिल को तो छोड़ें, आप मादी को देख लें। 2013 से लेकर 18 तक तो हमारी हुकूमत रही है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आज महंगाई की रेशो जो है वो डबल डिजिट में जा चुकी है, 14%, 12 से 14% तक है, शायद इससे भी ज्यादा। हमारे टाइम में 4%, 10% इंक्रीज कर गई जी। मतलब है कि ये सूरत हाल है। आप देखें ना, अद्वियात की कीमतें 300% बढ़ गई हैं। सब्जियां जो मतलब है कि उस वक्त 20 रुपए की सब्जी आती थी, आज वो 200 की आ रही है। जो दालें उस वक्त मतलब 15-20 रुपए में जो दाल मिलती थी, आज आपको 200 रुपए में उतनी दाल खरीदना पड़ती है। अद्वियात का तो लोग सिर्फ ख्वाबों में देख सकते हैं अमली तौर। और हॉस्पिटल की ये हालात है कि जो लोगों का फ्री इलाज होता था, टेस्ट होते थे, जो अद्वियात आती थी, वो तमाम की तमाम बंद कर दी गई। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपनी कीमती राय से आगाह किया। थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, आज हमने बात की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बयान, मुस्लिम लीग नून का बयानिया और PDM पे इस पर क्या असरात पड़ेंगे। हमने अपने मेहमानों की कीमती राय आप तक पहुंचाई। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगली एपिसोड में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।